Let's begin. So we are discussing the another topic, that is nothing but the revaluation which is to be made for the entire class of assets. Revaluation which is to be made for the entire class of asset. What does this topic talks about is revaluation which is to be made for the entire class of assets. If an item of property, plant and equipment is revalued, suppose कोई item है, suppose if there is an item of property, plant and equipment is to be revalued, अगर वो revalued हुआ है, if the same is to be revalued, then the entire class of PP, then the entire class of property, plant and equipment to which that asset belong to be revalued. अगर कोई एक आइटम जो है पीपी का वो रीवैल्यूड हुआ है, तो जो एंटायर क्लास है ऑफ विच बिलोंग्स टू द सेम आइटम विच बिलोंग्स टू दैट एसेट शैल बी रीवैल्यूड, तो सारे रीवैल्यूड होंगे. उसके बाद a class of PP is a grouping of assets of a similar nature and used in an entity's operation, and the following are the example of separate classes. सेपरेट क्लासेस क्या है, जैसे कि लैंड एक क्लास है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, शिप्स, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, फिक्सचर, ऑफिस इक्विपमेंट एंड बैरर क्लास. दीज आर द क्लास ऑफ द पीपी. उसके बाद क्या होगा, व्हाट हैपन द नेक्स्ट विल बी the item within a class of property, plant are revalued simultaneously to avoid the selective revaluation of assets and the reporting of amount in the financial statement that are the mixture of cost and value as at different dates. तो जो आइटम होंगे within the class of property, विद इन द क्लास, मतलब ये पीपी की पूरी अलग अलग क्लासेस है. लैंड एक क्लास है, लैंड एंड बिल्डिंग, देन मशीनरी, देन शिप्स, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल एंड सो ऑन. तो सपोज हम क्या बोल रहे हैं, द आइटम विद इन द क्लास ऑफ पीपी आर रीवैल्यू साइमल्टेनियसली to avoid the selective revaluation of asset and the reporting of amount in the financial statement that are a mixture of cost and values that are different date. जो भी आइटम होंगे विद इन द पीपी वाली क्लास में वो रीवैल्यू होंगे साइमल्टेनियसली टू अवॉइड द सेलेक्टिव रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रिपोर्टिंग अमाउंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर मिक्सचर ऑफ कॉस्ट एंड वैल्यू एज एट डिफरेंट डेट्स. इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन है, आई वांट टू डिस्कस दैट वन. However, a class of assets may be revalued on a rolling basis provided the revaluation of class of assets is completed within a short period and provided the revaluation are kept up to date. Now, the one is illustration 4 which we want to discuss, that is the revaluation model for the entire class. Illustration So we are discussing our another illustration of financial reporting, that is illustration number 4. So what does illustration 4 talks about is revaluation model for revaluation model for revaluation model for entire class. तो इसमें क्या होता है एग्जैक्टली, revaluation model for entire class में what happen in this case is Venus Limited is a large manufacturing group. Venus Limited क्या है, एक large manufacturing group है and it owns a considerable number of industrial building. मतलब कि Venus Limited के पास बहुत सारी buildings है, they have their own buildings and उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इट ओन्स अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग सच एज फैक्ट्रीज है, वेयरहाउसेस है, ऑफिस बिल्डिंग एंड सेवरल कैपिटल सिटीज. जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है वो लोकेटेड इन इंडस्ट्रियल जोन में है, वेयर एज जो ऑफिस बिल्डिंग है दैट द सेम आर इन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द सिटी. मतलब दे हैव इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, they have what, they have industrial buildings as well as they have the office buildings. इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स भी है, उसके अलावा ऑफिस बिल्डिंग्स भी है उनके पास.
The industrial buildings are located in industrial zone, whereas the office buildings are in central business districts of the city. Venus Limited Management wants to apply the Ind AS 16 revaluation model to the subsequent measurement of office buildings, but continue to apply the historical cost model to the industrial buildings. तो Venus Limited क्या चाहती है? Venus Limited what they want is वो रिवैल्यूएशन मॉडल लगाना चाहती है टू दी ऑफिस बिल्डिंग्स में, एंड दे वांट टू कंटिन्यू विद द हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल टू द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग. तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग पे तो वो चाहते हैं, दे वांट द कॉस्ट मॉडल, और ऑफिस बिल्डिंग्स पे वो चाहते हैं दैट इज द रिवैल्यूएशन मॉडल. ऑफिस बिल्डिंग पे वो क्या चाहते हैं, दैट द सेम इज द revaluation model. Analyze the accounting treatment which is to be applied by the management in light of Ind AS 16. तो आपको एनालाइज करना है the accounting treatment, what will be the accounting treatment in that particular case which is to be applied by the management in light of Ind AS 16. तो मतलब सेम क्लास ऑफ पीपी, मतलब बिल्डिंग एक पूरी क्लास ऑफ पीपी हो गया. अब वो क्या चाहते हैं कि जो उनका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है उस पर हिस्टोरिकल कॉस्ट लगा दे, और जो ऑफिस बिल्डिंग है उस पर वो लगा दे सब्सिक्वेंटली द रिवैल्यूएशन मॉडल. तो ऐसा क्या पॉसिबल है? या सेम क्लास ऑफ पीपी पे डिफरेंट डिफरेंट लग सकता है क्या? ऊपर तो हमने पढ़ा कि सेम क्लास अगर वो रीवैल्यू हुई है तो उसको भी रीवैल्यू करना पड़ेगा, ऐसा पढ़ा है. तो इस केस what will be its treatment in light of Ind AS 16 that we need to discuss. So we shall proceed for the discussion part. So Venus Limited Management can apply the revaluation model only to the office building. तो वीनस लिमिटेड मैनेजमेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल ओनली टू द ऑफिस बिल्डिंग पर ही ओनली. द ऑफिस बिल्डिंग कैन बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शन, नेचर एंड लोकेशन. तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो ऑफिस बिल्डिंग है दैट इज द क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल है, डिस्टिंग्विश है फ्रॉम द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग से इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शन, नेचर एंड जनरल लोकेशन. Ind AS 16 परमिट करता है द असेट विच इज टू बी रीवैल्यू ऑन अ क्लास बाय क्लास बेसिस. तो Ind AS 16 हमें परमिट कर रहा है, Ind AS 16 हमें परमिट कर रहा है एसेट रीवैल्यू हो सकते हैं बाय द क्लास बाय क्लास बेसिस पे. तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि वो अप्लाई कर सकते हैं ऑफिस बिल्डिंग पर, और क्योंकि ये क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल है फ्रॉम द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग वाले पार्ट से, और Ind AS 16 परमिट करता है क्लास बाय क्लास बेसिस पे अगर उसे रीवैल्यू करना है तो. So different characteristics of the building enable them to classify as different PPA classes. क्योंकि इसकी different characteristics है बिल्डिंग की which enable them which is to be classified at different PPA classes. उसे classify किया है as different PPA classes. The different measurement model can therefore be applied to these classes for subsequent measurement. So different measurement model can therefore be applied. तो different measurement model apply हो सकता है to these classes for subsequent measurement के लिए. All property within the class of office building must therefore be carried at revalued amount. और जो भी सारी जितनी भी चीजें आ रही है ऑफिस बिल्डिंग की, all property within the class of office building must therefore be carried. तो जितनी भी ऑफिस बिल्डिंग से रिलेट करती है उसको सबको रिवैल्यू करना पड़ेगा. सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ टू क्लासेस मस्ट बी गिवन इन अकॉर्डेंस विद. और जो सेपरेट डिस्क्लोजर अपन को देना पड़ेगा एज पर पैरा 73 ऑफ Ind AS 16 के अकॉर्डिंग. तो इसमें ये बात किया है. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन बोल रहा था कि रिवैल्यूएशन मॉडल है एंटायर क्लास वीनस लिमिटेड के पास इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है जिससे वो कॉस्ट मॉडल हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल पे दिखा रही है, ऑफिस बिल्डिंग्स है जिसे वो रिवैल्यूएशन मॉडल पे दिखाना चाहती है. क्या वो सब्सिक्वेंटली ऐसा कर सकती है या नहीं? एज पर दिस तो रिवैल्यूएशन विच इज टू बी मेड फॉर द एंटायर क्लास ऑफ असेट्स, और दिस इज बाय क्लास बेसिस के अकॉर्डिंग Ind AS 16 परमिट कर रहा है एज पर पैरा 73 ऑफ Ind AS 16 के अकॉर्डिंग. तो वीनस लिमिटेड मैनेजमेंट अप्लाई कर सकते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल ओनली टू द ऑफिस बिल्डिंग पर ही. जो ऑफिस बिल्डिंग है कैन बी क्लियरली डिस्टिंग्विश हो सकता है फ्रॉम द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शन, नेचर एंड जनरल लोकेशन. Ind AS 16 परमिट कर रहा है एसेट व्हिच इज टू बी रिवैल्यू ऑन अ क्लास बाय क्लास बेसिस. Different characteristics of building enable them to be classified different PP classes because they have the different characteristics. Different measurement model can therefore apply to this class for subsequent measurement all property within this. तो ऐसा हमें परमिट किया है. ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस और डेफिसिट अराइजिंग ऑन रीवैल्यूएशन, इसको हम सब्सिक्वेंट वीडियो में डिस्कस करते हैं. ऑलराइट.